السلام علیکم ناظرین، میرا نام اکبر جان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان امیج نیوز۔ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہ جگہ ہے بیف بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ۔ یہی ہے وہ ادارہ جو بلوچستان کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس فراہم کرتا ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اسی ادارے کے ذریعے ہی طلباء کو مالی سپورٹ مہیا کرتی ہے تاکہ طلباء مالی مشکلات کے بغیر ہی اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیف ہے کیا، بیف کیسے کام کرتا ہے اور بیف کا مشن کیا ہے اور کون سے ایسے طلباء ہیں جو بیف اسکالرشپ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی بیف کے جو سی او صاحب ہیں محمد زکریا صاحب، اس سے بات کرتے ہیں اور بیف کے حوالے سے سی او صاحب سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے سر آپ اپنا تعارف کرائیں اور بیف کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور کون سے ایسے طلباء ہیں جو بیف سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد زکریا خان نورزئی، چیف ایگزیکٹو آفیسر بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ۔ مختصراً بیف سے متعلق یہ بتاؤں کہ اٹ از اے پبلک سیکٹر کمپنی جس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جس کے تحت یہ کمپنی موڈ میں کام کرتی ہیں، اور اس کا ایک ہی مشن ہے دیٹ از ٹو پروموٹ ایجوکیشن، اور پروموٹ ایجوکیشن ہم کرتے ہیں تھرو ایوارڈ آف اسکالرشپس۔ ہر سال تقریباً 16,000 کے قریب ہم اسکالرشپ پلان کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکالرشپ اسکیمات کے تحت، جو کلاس 9 یا کلاس 7 سے لے کے ایم ایس ایم فل تک، اور ریسنٹلی کرنٹ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی پی ایچ ڈی اسکالرشپس کی، تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2 ارب کے قریب سالانہ ہمارے اسکالرشپ ڈسبرسمنٹ ہیں، جو ہم مستحق بچوں میں، ذہین اور محنتی بچوں میں جو میرٹ پہ آتے ہیں، یا اسپیشل کوٹا ہمارے پاس اسکالرشپس ہیں، ان میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں، جس کے لیے ڈفرینٹ اسکالرشپ اسکیمات ہر سال ہم اناؤنس کرتے ہیں۔ مختصراً اس میں اس طرح کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو کلاس 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے کیڈٹ ایکسلنس کے نام سے۔ بالکل سر۔ پاکستان کے تقریباً 17 کے قریب کوالٹی کیڈٹ کالجز اور ریزیڈنشل سکولز اس میں انکلوڈڈ ہیں، اور ہر کیڈٹ کالج میں ہم نے 4 سلاٹس رکھی ہے۔ یہ بھی غریب بچوں ہی کے لیے کلاس 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹل انٹرمیڈیٹ، فلی ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ غریب بچوں کے لیے اس لیے کہ وہ بچے جنہوں نے 6ٹھی کلاس گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہو، پھر جا کے ان کالجز میں سے کسی بھی کالج میں وہ داخلہ لیتے ہیں، ہمارے میرٹ پہ آتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ایف ایس سی تک فلی فنڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے جس کو پارشلی فنڈڈ اسکالرشپ اسکیم کہتے ہیں۔ کلاس 9 سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایم ایس ایم فل تک۔ کرائٹیریا اس میں میرٹ کا ہے، لیکن زیادہ تر بچے ہمارے پاس اس میں سے گورنمنٹ اسکولز اینڈ کالجز کے آتے ہیں جو غریب بچے ہوتے ہیں۔ پھر انہی اسکیمات میں کوٹا ہم نے رکھا ہے مخصوص جو نادار بچے ہیں ان کے لیے، جیسے یتیم بچے ہوئے، معذور بچے ہوئے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ سنگل پیرنٹ ہے، والدین ان کے نہیں ہیں، شہداء کے بچے ہیں، ان کے لیے پھر ہم نے اسپیشل کوٹا بھی رکھا ہے، یعنی وہ میرٹ سکیمز بھی سلاٹس بھی اویل کر سکتے ہیں اور اپنے اسپیشل کوٹا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو پارشلی فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام ہے اس میں ہم تقریباً 13,000 کے قریب اسکالرشپس دیتے ہیں بچوں کی، جس کی مالیت تقریباً 84 کروڑ سے 90 کروڑ سالانہ ہوتی ہے۔ وہ کلاس 9 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں بی ایس پروگرام، ماسٹرز پروگرام، ایم فل پروگرام، یہ سب کچھ ہے۔ تھینکس ٹو دی کرنٹ گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی صاحب تو بیف کو پرسنلی اون کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ بلوچستان میں اسکالرشپس کو پروموٹ کرنا ہے، تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، جس کے لیے میں کہتا ہوں جو سب سے بہترین اسکیم لانچ ہوا ہے بلوچستان کے بچوں کے لیے، وہ تو ایک پی ایچ ڈی اسکالرشپس، جو کہ دنیا کے ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں جو ہمارے بچے یہاں کے اسٹوڈنٹ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، سالانہ ایک اسٹوڈنٹ پہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب خرچہ آتا ہے، جو باہر پی ایچ ڈی کرنے جائیں گے ٹاپ 100 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں، وہ صرف وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے، ہمارے پاس وہ اپنا اسکالرشپ فارم سبمٹ کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس یونیورسٹی میں ہم نے ایڈمیشن لیا، ہم ان کو سلیکٹ کر کے یہاں سے وزیر اعلیٰ کے فنڈ سے تمام ان کے اخراجات ہم برداشت کریں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ شہداء کے بچوں کے لیے، وہ سول شہداء، رکشے والا، ریڑی والا جو بم دھماکے میں شہید ہوتا ہے، اس کی ہلاکت ہوتی ہے، یا ایسے غریب و نادار لوگ جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں یا جو سیکٹیرین وائلنس تھا ان واقعات میں وہ شہید ہوئے، ابھی ان کے بچوں کا
कोई वाले वारिस नहीं है। तो उनके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लॉन्च किया है, क्लास नर्सरी से लेके 16 साल की तालीम के तकमील तक इन बच्चों को भी फुली फंड करेगा। पाकिस्तान के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले। बिल्कुल। तो इस वक्त तकरीबन कोई 300 के करीब शुहदा के बच्चे हमारे पास इनरोल्ड है मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, जिसका वैसे आम वालिदैन सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके अलावा वज़ीर आला साहब ने जो प्रोग्राम अनाउंस किया है बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसमें ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में उनको इज़्ज़त की निगाह से अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जाता, उनके लिए स्पेशल हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स निकाली है, यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन करवाया है, और उनके लिए हम यहीं पे बीफ ऑफिस में स्पेशल इंग्लिश प्रोफिशेंसी क्लासेस चला रहे हैं ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक सोसाइटी का ऐसा सेगमेंट है जो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। वो हमारे पास भी जब आते हैं उनके कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, तो उनके लिए हमने एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ पे रखा है स्ट्रिक्टली वज़ीर आला साहब के। कितने स्टूडेंट्स हैं तकरीबन जो आप लोग कर रहे हो ये ट्रांसजेंडर? जब हमने लॉन्च किया था शुरू में तो हमारे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट एनजीओज़ को कांटेक्ट किया, हाउस होल्ड्स को कांटेक्ट किया, उसके बाद तकरीबन कोई 10 के करीब बच्चों ने हमसे रब्ता किया। वो तादाद इस वक्त तक 60 तक पहुंच चुकी है। ट्रांसजेंडर बच्चे वो हमारे पास आते हैं, यहीं पे हमारे पास पढ़ रहे हैं। उनको फिर हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुकिंग का, ब्यूटिशियंस का वगैरह, जिन्होंने पढ़ा है उनको हम पढ़ा रहे हैं। ब्यूटम्स में उनको एडमिशन दिए हैं, बलूचिस्तान से बाहर उनको एडमिशन हमने करवाए हैं, बीएस में, मास्टर्स में, एमफिल में, और इसके अलावा डिफरेंट तकनीकी कोर्सेज जो हैं आईटी से रिलेटेड वो क्लासेस हमने उनके लिए स्टार्ट की हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नज़ीर बलूचिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलता, कि इस सेगमेंट के लिए स्पेसिफिक एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला साहब इसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का प्रोग्रेस खुद ही मांगते हैं, वो खुद ही इनको परसू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टॉपर का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ मैट्रिक में, जो हमारे बलूचिस्तान के बच्चे, जिसमें वज़ीर आला साहब के अहकामात ये थे कि उन बच्चों को टारगेट करना है जो कि हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बलूचिस्तान के दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो सरकारी स्कूलों से बच्चे, मतलब सरकारी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको, सरकारी स्कूल में जो पढ़ेंगे, यानी आवारान का एक बच्चा है, आवारान हाई स्कूल से अगर वो मैट्रिक में टॉप करता है तो हम उसको 16 साल तालीम की तकमील तक फुली फंड करेंगे। ठीक, वो बच्चे इनमें से एक्सक्लूडेड है जो कि गैरिजन में पढ़ रहे, इस्लामाबाद में पढ़ रहे, क्वेटा में पढ़ रहे हैं। उनके मार्क्स बेशक उनसे ज़्यादा हो, लेकिन वो कंपटीशन भी इतना टाइट है इनके दरमियान कि एक बच्चा सरकारी स्कूल से मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है और दूसरा एक प्रिविलेज्ड बच्चा जिसको हर सहूलत मिला है, ट्यूशन की भी सहूलत है, अच्छी इंस्टीट्यूशन में वो इनरोल्ड है, उनके मार्क्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 15-20 से ज़्यादा नहीं है। तो उन बच्चों को हमने टारगेट किया है। ये वज़ीर आला साहब के स्पेशल अहकामात थे कि जिस पे अब वो बच्चे टॉप 5 गर्ल्स, टॉप 5 बॉयज़, इनको हम हर साल सेलेक्ट कर रहे हैं। इस साल का इंटेक हम ले चुके हैं, तकरीबन 360 के करीब स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पाकिस्तान के जिस भी तालीमी अदारे में दाखिला लेंगे, चाहे उसका फीस जितना भी हो, उसकी पेमेंट वो बीफ करेगी। सिंपल तरीक़ेकार इसका ये है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर का हमने लिस्ट अपने फेसबुक पेज पे दिया, अखबार में दिया, अपनी वेबसाइट पे दिया। स्टूडेंट उनमें से देखेगा अपना नाम, अगर स्टूडेंट को कोई एतराज़ है तो वो हमारे पास अपनी शिकायत लेके आएगा कि मेरे मार्क्स ज़्यादा है, मेरा नाम नहीं है, उसको भी हम इंटरटेन करेंगे। ठीक, इसके अलावा पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो लॉन्च हुए जिस पे हमारी बात हुई, उसका नज़ीर नहीं मिलता। देन शुहदा के लिए जो 8 अगस्त 2016 का एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे नाम और वकील शहीद, बिल्कुल सर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, बिल्कुल, कि 30 साल का तजर्बा रखने वाला एक वकील जब एकदम दरमियान से गया तो उसके पीछे फिर लीगल फ्रेटर्निटी में जो हमारा कानूनी दायरेकार है उसमें जो खला आई, उस खला को पुर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने स्पेशल फंड रखे। उन फंड से हम 2 प्रोग्राम चला रहे। एक प्रोग्राम ये जो 56 वकील शहीद हुए थे उनके बच्चों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, पाकिस्तान में वो कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी भी तालीमी अदारे, तो उनको 16 साल की तकमील तक हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
दूसरा जो इसका कंपोनेंट है उसमें यंग लॉयर्स को हमने इंग्लैंड से पढ़ाना है, उनको बारेट लॉ, जो अभी नई स्कीम आपने लॉन्च की है, नई स्कीम है जिसमें उनको बारेट लॉ, LLM और PhD हम करवाते हैं। इसके पीछे मंतिक क्या है? इसके पीछे मंतिक ये है कि ये जो यंग लॉयर्स जाके UK से पढ़ेंगे, अमेरिका से जाके पढ़ेंगे, वापस जब आएंगे तो वो जो हमारे दानिश्वर वकील थे जो अब हमारे दरमियान में नहीं रहे हैं, तो उनके खला को हम पुर कर सकें, बिल्कुल, और एक नया टैलेंट आ जाए ताकि वो बाहर से पढ़ के वापस आ जाए। बिल्कुल। और करंट जो गवर्नमेंट है, आपने क्वेश्चन किया था कि पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट का बीफ के हवाले से क्या अप्रोच है, तो बताता चलूँ कि पिछली गवर्नमेंट्स में अदवार में बीफ को वो पजीराई नहीं मिली, पिछले अदवार में वो सरपरस्ती नहीं मिली जो अभी मिली। बिल्कुल। अभी इस तरह मिली है कि हमारे स्कॉलरशिप स्कीमात को हम सालाना तकरीबन 11,000 के करीब स्कॉलरशिप्स देते थे, जिसमें फुली फंडेड सिर्फ 200 बच्चों को हम देते थे। फुली फंडेड जो थे, बाकी पार्शली फंडेड। बिल्कुल सर, ये पार्शली फंडेड और फुली फंडेड, ये इनमें क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क ये है कि पार्शली फंडेड में हम एक फिक्स अमाउंट देते हैं स्टूडेंट को, मतलब 9th क्लास का एक बच्चा है उसको 28,000, BS प्रोग्राम में 84,000, ये फिक्स्ड अमाउंट। फुली फंडेड प्रोग्राम ये है कि बच्चा जहाँ पे एडमिशन लेगा वहाँ पे उसकी जितनी भी फ़ी के अखराजात होंगे, जितने हॉस्टल के अखराजात होंगे, वो तमाम बीफ पे करेगा, तो स्टूडेंट पे कोई भी खर्चा नहीं होता। तो करंट गवर्नमेंट ने जब बीफ की सरपरस्ती ली, 5 फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सिविल शुहदा के लिए और PhD स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा जो हमारा पिछला प्रोग्राम था कैडेट एक्सेलेंस का, जिसमें हम बच्चों को 7वीं क्लास में कैडेट कॉलेजेस में पढ़ाते थे, सिर्फ उसमें 6 कैडेट कॉलेजेस थे, उनकी तादाद बढ़ा के 17 कर दी गई, और उनकी तादाद 17 से बढ़ा के यानी 20 के करीब हम उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे, वो तादाद भी बढ़ा के 70 कर दी गई। ठीक, इसके अलावा जो हमारा BS प्रोग्राम है पार्शली फंडेड, उसके अमाउंट को भी इंक्रीज कर दिया गया है इस गवर्नमेंट ने, और इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 अरब रुपए इस साल रखे हैं बीफ के लिए, और अगले साल तकरीबन प्रॉमिस्ड हुए हैं कि 4 अरब मजीद बीफ को मिले, मतलब बढ़ाया जाएगा, बीफ के फंड को बढ़ाया जाएगा। ये फंड अभी फिल वक्त हमारा फंड तकरीबन 15 अरब के करीब है, 2 अरब उसमें करंट गवर्नमेंट ने ऐड किए तो 17 हुआ, बिल्कुल, 4 मजीद का प्रॉमिस हुए जो नेक्स्ट बजट में आ जाएगा, उन्होंने कमिट किए, तो वो जब आएगा ये तकरीबन 20 के करीब पहुंच जाएगा। तो इसमें से फिर हमने जो अपनी बजटिंग की है, हमने अपनी बजटिंग में अमाउंट बढ़ा दी है कि पहले अदवार में हम तकरीबन 1 अरब के करीब स्कॉलरशिप्स देते थे। इस साल 2025 के लिए हमने जो स्कॉलरशिप्स लॉन्च किए वो 2 अरब 30 करोड़ मालियत के, जिसमें फुली फंडेड कंपोनेंट 5 है, बल्कि कैडेट एक्सेलेंस जब आप इंक्लूड करोगे 7 हो जाए। अब इन सब स्कीमात को जब आप देखते हो, इनमें नीड बेस का एलिमेंट ज्यादा है कि बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से पढ़ा हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में तो उसको कोई फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई अमीर का बेटा तो वहाँ पे नहीं पढ़ेगा, वो तो अगर आवारान का है, जोब का है, कहीं से भी है, वो आके कोयटा में, गैरिजन में, इस्लामाबाद में कहीं पे इनरोल्ड हो जाएगा। तो इससे जो आने वाले दिनों में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक तो PhD स्कॉलरशिप से हमारे पास हर साल तकरीबन 20 के करीब बच्चे फॉरेन टॉप 100 यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड होके आएंगे। सर, अब तक ये जो PhD प्रोग्राम है, इसमें कितने आप भेज चुके हैं स्टूडेंट्स PhD प्रोग्राम में, और कितने एप्लीकेंट्स आपके पास आए हैं? ये क्राइटेरिया थोड़ा टफ हो जाता है सर, इस हवाले से थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। PhD स्कॉलरशिप्स चूंकि हमने इस साल अनाउंस की है, उसकी लास्ट डेट है तकरीबन मार्च में वो कंप्लीट होगा। तो सिंपल क्राइटेरिया है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हो, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में से बलूचिस्तान का स्टूडेंट, लोकल एंड डोमिसाइल बलूचिस्तान का, वो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेगा। सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट? साइंस, और 30% जो है वो सोशल साइंसेज है, जिसमें IR हुआ, आपका स्ट्रेटेजिक स्टडीज, चाइना स्टडीज। लेकिन IT इसमें नहीं आ जाती? वो सारे साइंस में कवर्ड है, IT हुआ, इंजीनियरिंग, सब कुछ, बिल्कुल, मेडिकल साइंस, वो सब इसमें कवर्ड।
वो वहाँ पे एडमिशन लेगा, एडमिशन के बाद वही जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर उसको देती है एडमिशन की, वो ऑफ़र लेटर एप्लीकेशन के साथ लगा के हमारे पास ले आएगा। तो चूंकि अभी डेट उसका लास्ट 30 मार्च है 2025, तो प्रोसेस उसका शुरू है, एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं। तो इस साल कोशिश हमारी ये है कि हम 10 से ज़्यादा बच्चों को भेज दें, क्योंकि इसका तरीक़ेकार वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही सख्त होता है, बहुत सख्त है। हाँ, और PhD करना ये फिर आता है उसमें कि ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है इसके लिए। तो वही बच्चे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। और ये पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कि जो इसमें रेट्स रखे गए हैं। वज़ीर आला साहब के स्पेशल अहकामात थे कि इनको आपने फुली फंड करना है, फुली फैसिलिटेट करना है। जितना भी बजट लगता है, तमाम जितना भी खर्चा उस स्टूडेंट का आएगा, मेडिकल से लेके वीज़ा तक, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस तक, फिर उसके हॉस्टल तक, उसका जो सालाना फ़ीस होगा, सब कुछ हमारे रेट्स जो बीफ ने रखे हैं वो HSC से भी ज़्यादा हैं, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से भी ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट को हम हर तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है दुनिया जहान के। हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे और बच्चे आ रहे जो हमसे सीख रहे, गाइडेंस ले रहे कि हम अप्लाई किस तरह कर लें। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आउट ऑफ प्रोविंस हैं, जिस तरह पंजाब में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, KPK में पढ़ रहे हैं, उनके हवाले से भी कोई स्कॉलरशिप्स हैं? बिल्कुल, उनके बारे में भी थोड़ा बता बिल्कुल दें। उनके लिए हमारे 2 स्कॉलरशिप स्कीमात हैं। एक स्कॉलरशिप स्कीम फुली फंडेड है, एक पार्शली फंडेड है। जो बलूचिस्तान के बच्चे यहाँ से मैट्रिक कर लेते हैं या इंटरमीडिएट, अब मैट्रिक जब करेगा वो तो कवर हुआ डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान में जहाँ पे भी जाएगा 16 साल तालीम तक हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ से FSC करेंगे, FSC के बाद वो पंजाब, सिंध के PGB जिधर भी जाके एडमिशन लेंगे। तो 2 मोड्स हैं हमारे पास। एक मोड है पार्शली फंड, जिसमें हम स्टूडेंट को सालाना 24,000 देते हैं। क्राइटेरिया सिंपल है कि उसका वहाँ पे एडमिशन हो, लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान का हो और उसके 60% मार्क्स, उससे कम नहीं हो, और 75% हाजिरी हो। वो यूनिवर्सिटी हमें लिस्ट भेजती है, हम यूनिवर्सिटी को लेटर लिखते हैं, यूनिवर्सिटी हमें लिस्ट भेजती है। अगर बलूचिस्तान के 100 बच्चे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो लिस्ट में हम देख लेते जो हमारे मेरिट पे आ रहे हैं उनको हम पार्शली फंड कर लेते हैं। और एक हमारा फुली फंडेड सेगमेंट था जिसमें हमने पाकिस्तान के 16 क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस रखे थे, जिसमें FSC के बाद हमारे बच्चे जाके BS में एडमिशन लेते थे। एडमिशन लेने के बाद उस इंस्टीट्यूट को हमने स्लॉट्स दिए होते थे। मिसाल कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को अगर हमने 15 स्लॉट्स दिए थे तो बलूचिस्तान के बच्चे जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे FSC के बेस पे उनका जो मेरिट बनेगा, FSC के मार्क्स पे। इस प्रोग्राम को भी अभी सेक्रेटरी फाइनेंस चूँकि चेयर करते हैं, हेड है बीफ के, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द बीफ बोर्ड, उनके डायरेक्शंस हैं कि इसको भी तमाम के तमाम को फुली फंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साल 2025 से ये भी नीड बेस्ड फुली फंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वो बच्चे जो नादार हैं, जो जाते हैं बलूचिस्तान से बाहर लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, वालिदैन का इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक, तो उनको भी हम फुली फंड करेंगे। उसमें क्या है कि बच्चे का स्कॉलरशिप लगेगा बीफ के साथ, जिसमें हम उसका ट्यूशन फ़ी देंगे जितना भी उसका फ़ी आएगा, और हॉस्टल के जो चार्जेस होंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि सिर्फ 16 इंस्टीट्यूशंस थे, अब 16 को फुली फंडेड में, वो 16 को हम बढ़ा के अक्रॉस पाकिस्तान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे बच्चे जाएंगे 60% उसके मार्क्स हो, लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान का हो और गरीब घराने से, बिल्कुल वो जाएगा, एडमिशन लेगा। एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट लिस्ट हमारे पास भेजेगी, हम लेटर लिखते हैं, उस मेरिट लिस्ट में फिर हम बच्चे की स्क्रूटनी करके देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि नीड बेस्ड है, बलूचिस्तान का बच्चा है बिल्कुल। उसके बाद हर साल उसको हम टोटल फ़ी जो है इन एडवांस पे करेंगे। बिल्कुल सर, माजूर जो अफराद हैं, माजूर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हवाले से बताएं, उनका कोटा 100% है? माजूर बच्चों के लिए पहले जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बीफ पार्शली फंडेड प्रोग्राम है या फुली फंडेड प्रोग्राम है, उसमें एक कोटा रखा गया था इनके लिए, बिल्कुल शुहदा के बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, माजूर बच्चों के लिए। फिर वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया, स्पेशल डायरेक्शंस दिए कि इनके कोटा को 100% करना है, तो वो हमने 100% बढ़ा दिया। अब जितने भी माजूर बच्चे होंगे वो क्लास 7 से लेके PhD तक फुली फंडेड वो हमारे पास आएंगे, वो अप्लाई करेंगे अपनी स्कीम में। जाहिर सी बात है वो मेरिट क्राइटेरिया तो हम रखेंगे कि वो माजूर हो लेकिन 60% से उसके मार्क्स कम ना हो, लोकल डोमिसाइल उसका बलूचिस्तान का हो और 75% उसकी हाजिरी हो, क्योंकि पेमेंट उनको होती है पढ़ने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। जो हाँ, वो अगर जाए नहीं और वो स्टडी में इंटरेस्ट ही ना ले तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो उन अफराद के लिए भी एक मेगा स्कीम लॉन्च हुआ है जिसमें वो क्लास 7 से लेके
आखिर तक, यानी MS MPhil तक और फिर PhD तक, वो हमारे पास अपने कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मेरिट में कम्पीट कर सकते हैं, अगर मेरिट से वो रह जाता है फिर अपने कोटा में अप्लाई कर सकते हैं और हम उनको फुली फंड करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं मेरिट के हवाले से, अब जिस तरह बलूचिस्तान के दूसरे इदारे हैं, हर जगह करप्शन, सिफारिश, तो इस हवाले से बताएं क्या ये सिस्टम इधर भी है या बीफ में? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बीफ अगर एक चीज़ पे फ़ख्र कर सकता है वो ये है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, शफाफियत है। वो शफाफियत किस तरह है? वो शफाफियत इस तरह है कि जहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, बिल्कुल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे फिर करप्शन और अकरबा परवरी के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है, कि मेरिट की वायलेशन हो। हम उसको काउंटर किस तरह करते हैं? हम उसको काउंटर इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो हम इंस्टीट्यूट्स को लिखते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे आप हमें मेरिट लिस्ट दें। वो जब हमें मेरिट लिस्ट देते हैं तो उससे पहले उन्होंने फॉर्म कलेक्ट करने होते हैं, तो वही मेरिट लिस्ट वो अपने नोटिस बोर्ड पे आवेजा कर देते हैं। हर स्टूडेंट खुद देख लेता है कि किस मेरिट पे, हाँ, कि मैं किस मेरिट पे आ रहा हूँ। तो अगर उसका मेरिट वायलेट हुआ है तो वही पे इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन ही से वो अपनी शिकायत कर देता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब ये मेरिट लिस्ट हमारे पास आती है, हमारे पास बाकायदा इधर 3 टियर मैकेनिज्म है। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम उसकी स्क्रूटनी करती है, देखते हैं कि वो जो मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट से आया है उस पर सिग्नेचर कंप्लीट है, आया, एग्जामिनेशन ब्रांच ने उसको क्रॉस चेक किया है कि नहीं किया, फोकल पर्सन रजिस्ट्रार के साइन है कि नहीं। ये होने के बाद फिर जाता है इसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन हमारा एक सेक्शन है, फिर इसका इंटरनल ऑडिट होता है, फिर जब फाइनल अप्रूवल होता है, फाइनल अप्रूवल से पहले हम ये लिस्ट अवेजा कर देते हैं अपनी फेसबुक पेज पे। बिल्कुल, पेज पे अवेजा कर देते हैं कि ये बच्चे हैं, इन बच्चों को इस नंबर से स्कॉलरशिप का मैसेज आएगा, किसी को अगर शिकायत तो हमसे रब्ता करें। तो कोई रब्ता नहीं करते, मतलब मेरिट पे ही बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरिट पे, बिल्कुल मेरिट पे। कोई एक आध केसेस इस तरह आ जाते हैं कि उस एक बच्चा है वो क्लेम कर रहा है कि सर मैं टॉप 10 पे था, मेरा नाम नहीं था। वो फिर जब हम इंस्टीट्यूट से रब्ता कर लेते तो वो कहता है कि या उसका कोई पेपर फेल है या उसका रिजल्ट हमारे पास लेट आया था, ठीक है, तो उस वक्त तक हमने ये टॉप 10 कर लिए थे, उसको भी फिर हम इंटरटेन कर लेते हैं। कोशिश हमारी शफाफियत की है, अब तक माशाल्लाह तरीक़ेकार हमारा बहुत ही साफ और शफाफ है। उसकी वजह ये कि हमारा स्टेक होल्डर स्टूडेंट है और स्टूडेंट अपने राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बोर्ड से रिजल्ट उठाया, उस रिजल्ट से हमने डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 सेलेक्ट किए। बिल्कुल, ये जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम अपने वेबसाइट और फेसबुक पेज पे दिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि उसके मार्क्स ज़्यादा हो और वो एतराज़ ना करे इस पर, बिल्कुल सर। हाँ, अगर उसके मार्क्स उससे ज़्यादा भी हो, नाम उसका ना हो, तो वो हमारे पास कंप्लेंट कर लेते हैं। कंप्लेंट करके फिर हम उस पूरी लिस्ट को रोक के उस वक्त तक उसको नहीं चलाते जब तक उस स्टूडेंट का ज़ाला ना हो, बोर्ड से रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शफाफियत है। बिल्कुल सर, लास्ट में आप जो तलबा हैं बलूचिस्तान के, बीफ के हवाले से इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बीफ के हवाले से मैं स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज़ है इस वक्त फॉरेन स्टडी के। PhD स्कॉलरशिप जो बलूचिस्तान में लॉन्च हुए, दैट इज़ हिस्टोरिक फर्स्ट, इसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। पहले बहुत मुश्किल था फुल ब्राइट के थ्रू या शिवनिंग के थ्रू एडमिशन लेना, इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाना है। और इसके बाद जो हमारा फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के दीगर अदारे हैं, लम्स हुआ, FC, GC, JIK एंड कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे तलबा बलूचिस्तान के गरीब तलबा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब जाए वहाँ पर एडमिशन लें, पढ़ाई करें, माश और आपकी जो माली मावनत है वो ज़िम्मेदारी बीफ की है। तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की स्पॉन्सरशिप है और ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स अवेल करके मेरा एडवाइस यही रहेगा कि दे शुड एक्सेल इन देयर लाइफ्स। तो नाजरीन, बीफ के जो CEO साहब थे उन्होंने बीफ के बारे में सब की सब इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आप एजुकेशन के किसी भी लेवल पर हैं, मैट्रिक में हैं, FSC में हैं, BS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, अपने सूबे में कर रहे हैं या आउट ऑफ प्रोविंस कर रहे हैं या PhD करने का ख्वाब रखते हैं, तो आपको ज़रूर बीफ की जो वेबसाइट है www.beef.org.pk उसको विज़िट करना चाहिए। वहाँ पर आपको देखना चाहिए क्या आप तो इस बीफ के स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपको बीफ की जो वेबसाइट है उसका ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ट्रांसजेंडर है या कोई
معذور جو طلبہ ہیں وہ ہیں تو ان کو ضرور اطلاع دیں، کیونکہ ان کا جو کوٹا ہے وہ 100% بڑھا دیا گیا ہے، تو ان کو آپ ضرور اطلاع دیں، ان سے اپلائی کروائیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات بیف کے اندر دی جائے گی۔ اگر بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بیف کی طرح بلوچستان کے اور ادارے بھی اسی طرح کام کریں جس طرح بیف کر رہا ہے، تو یقیناً بلوچستان ایک نہ ایک دن ضرور ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔